अगर आपके एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस पुट कर सकते हो. So once again, very good morning. It's a kind request to all the participants. Please put your highest qualification into the chat box along with your experience, if you have any. Thank you. Thank you, those who have responded. Siddharth Sahu, MCOM Finance. Pranjal, MBA Finance. Javed, 2 years PwC after MBA. Okay. Bhagyashri, MBA Finance. Kedar, MBA Finance, 4-month experience. Rajshri Singh, voice is not clear. It is for everyone. My voice is clear or not? Can anyone please? Voice is clear. So Bhagyashri, शायद आपके साइड में नेटवर्क की कुछ इश्यूज होंगे, एक बार चेक करो. Great. I need responses from all. मुझे सबसे चाहिए response. Your highest qualification. I need your highest qualification. Put your highest qualification into the chat box. आपकी highest qualification chat box में लिखिए. And अगर if you have any experience, अगर कोई experience है, तो वो भी आप put कर सकते हो. Rajshri Singh, MBA Finance. Others quickly. Maintain the protocol. Do not unmute yourself during the session and do not turn on your video also. At the time of question answer, you can ask your questions and all everything. Shubhangi, MBA Finance. Great. Others quickly. I need responses from all so that हमें पता चलेगा कि crowd जो है वो कौन है, उनकी qualification क्या है. Others quickly put your highest qualification into the chat box quickly. Last 30 seconds, put your highest qualification, then we will start immediately. Quickly. So very good morning to all the participants. On behalf of Skill Edge, I, Indranil Mukherjee, welcome all the participants for this Arambh 2023. And it's a series 1, part 1 के series 1 है ये. Every Sunday, same timing, आपकी ये series आगे बढ़ता रहे. This is not the end. Today is not the end. ये end नहीं है. How the world of finance works, अगर ये जानना है तो उसके लिए वक्त लगेगा. ये कोई 1-2 घंटे में जानने वाले चीज नहीं है. So how the world of finance works, series 1, core finance simulation game. It's a series 1 students. आज पहला दिन है. Every Sunday same timing ये series आगे बढ़ता रहेगा. So once again, very good morning. Skill Edge is an award-winning, vernacular-led skill tech platform by preparing graduates, postgraduates, and working profession from tier 2, tier 3 graduates, postgraduates, working executive to become day 1 financial analyst job ready. Till now, we reached 4.5 lakh students.
10,000 plus hours of deliver, 200 plus industry mentor professionals are involved with us. And they are all either IIT or IIM alumnus. Few are from INSEAD, France, world #1 B school, and few are from Harvard Business School. 2,000 plus students and 15 plus in-house faculty member. And this in-house faculty member, they are also industry experts. They are all IIT or IIM grad. And 100 plus batches till now. Many more awards and recognitions we received. In the year 2020, we got Best Startup Award by IIT Kharagpur in their Global Entrepreneurship Summit. We are associated with IIT Kharagpur, FTPO, CII, Startup India, TiE Pune, Business Outreach, and many more. पिछले 2.5-3 साल we reached across 4.5 lakh students. And उन students को हमने core finance की तैयारी करवाई है, that too in analyst profile की तैयारी करवाई for the fresher as well as in experience level. We as a company has been founded by teachers and industry veterans. हम आप लोगों को अगर core finance की बात करें, we will train you in vernacular led language. It means we will train you in English as well as in Hindi. This is our strength. As a company, we are a funded company with more than 20 investors and 8 plus member in our advisory board. Mr. Rohit Ghosh sir, CEO and the founder of Skill Edge. And he is also our course expert. INSEAD France alumni, world #1 B school. He trained more than 10 lakh students in India, having more than 17 plus years of experience in industry as well as in teaching. Co-founder of the company, Mr. Shailendra Marathe sir, IIM Bangalore gold medalist, former CFO Axis, over 25 plus years of experience in India as well as outside India. He worked with many big companies like Dell, Deloitte, Bajaj Finserv, and many more. We also have Mr. Prakash Bhatna sir, who is IIM Ahmedabad alumnus. Apart from this, along with this, many more industry experts and professionals are with us. Few big names in front of you in this slide, like Mr. Ankit Bajaj sir, over a decade of experience. He is a professional chartered accountant. Makarand Athole sir, he is the director of PRGX Global. Omkar Suman sir, professional analyst, and many more. In addition to this, we have 40 enthusiastic member जो पिछले 2.5-3 साल से हमारे साथ है, हमारे साथ काम कर रहे हैं, and it helped the company to impact the life more than 2,000 students who has been part of our various programs. In a nutshell, Skill Edge is a skill tech platform. By using technology, we do skill development for the specific job titles in core finance domain. What are those job titles? The job titles are financial analyst, equity analyst, credit analyst, investment analyst, research analyst, risk analyst, and many more. If you are looking to build your career in one of those job titles, but you are not from IIT or IIM, आप IIT IIM से नहीं हो, you have completed your graduation or post-graduation from tier 2, tier 3 colleges, but you have a dream to build your career in one of those job titles, then definitely
Skillage is for you because we care for your career. Agenda for the day. आज की एजेंडा क्या है? How the world of finance work. And मैंने जैसे कहा था कि ये सीरीज 1 है, फर्स्ट डे ऑफ सीरीज 1. एवरी संडे सेम टाइमिंग पे इसकी सीरीज आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस को अगर जानना है, हाउ द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस वर्क को अगर जानना है, ये 1 या 2 घंटे की बात नहीं है, इसके लिए टाइम लगेगा. एंड ये सीरीज आगे चलता रहेगा फॉर यू, स्पेसिफिकली फॉर यू, दोज who are the part of our ऑल इंडिया फाइनेंस कम्युनिटी. हमारे ऑल इंडिया फाइनेंस कम्युनिटी के जो मेंबर है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है. सो एजेंडा फॉर द डे, who are we as a company? Already I have told you how the world of finance work, कैसे काम करता है, why career as a financial analyst, how to start build a successful core finance career, what is this skill development course meaning. एक सवाल हमेशा 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 सबके मन में आता है, हमेशा सबके मन में आता है कि ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद क्या करें. ये सवाल आप अपने आप को भी पूछना कि सही में आता है क्या? ग्रेजुएशन हो गया है, इसके बाद क्या करें? जॉब करना है, कहां जॉब करना, या फिर इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप जॉब कर रहे हो but you are not satisfied with your current profile, with the salary package, environment, you want to switch, आप switch करना चाहते हो but नहीं कर पा रहे हो, any reason, but you don't know where to go, कहाँ जाना है. ये सवाल, ये questions, ये सवाल और ये problem 95% students face करता है. They want to switch करना चाहता है, but या तो टाइम एडजस्ट नहीं होता है, या फिर डिसीजंस नहीं ले पाते हैं कि सच में ये करना है या नहीं करना. Few important things that I want to discuss before I hand over this to today's mentor. The global market of financial analysis and analytics is growing at a steady CAGR of 10.7%. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप अगर गूगल करोगे तो आपको भी पता चलेगा, because this is the time to build your career in core finance as an analyst. core finance domain पे अगर आप अभी अपनी कैरियर बना सकते हो, इससे बेहतर गोल्डन टाइम नहीं हो सकता है, because right now India is the 5th largest economy in the world, और जिस तरह से इकोनॉमी बूम हो रहा है, this is the right time. The finance sector market value will rise to a whopping USD 11.4 billion by 2025, and the Indian finance analysis market value will be USD 3 billion by 2025. Now it's 2023. So सोचो, आप खुद ही सोच लो, अगर आज नहीं तो कभी नहीं, because finance domain, core finance domain analyst profile की आज बहुत जरूरत है. Lot of opportunities, lot of requirements are. Now students, it's a time to invite today's speaker, guest, mentor, and the chief mentor. None other than Mr. Rohit Ghosh sir is with us. Yes, students, जिस पल की हम इंतजार कर रहे थे, how the world of finance work, सर से बेहतर, रोहित सर से बेहतर ये कोई नहीं बोल सकता. No one. INSEAD France alumni, world #1 B school, over 17 plus years of experience in teaching as well as in industry. He trained more than 10 lakh students, and unke students Google to TCS to Harvard,
डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में है, जो जॉब कर रहे या पढ़ाई कर। सो नाउ विद दिस आई एम रिक्वेस्टिंग मिस्टर रोहित घोष सर, please take the charge of this session. Very good morning, welcome, over to you Rohit sir. Just give me 1 second sir, I'm making you co-host. Thank you sir. Morning to all of you. आज इंद्रनील की एनर्जी को मैं मैच नहीं कर पाऊंगा. Yesterday I had a viral of 103 degree Fahrenheit. But the energy of Indranil, I would request all of you to close the video. I would like only my video to be on. वो भी थोड़ी देर में मैं बंद करूंगा. बट जिस हिसाब से इंद्रनील ने इनिशिएटिव लिया है, आरंभ 23, उसी का एनर्जी मेरे अंदर आ गया सुबह सुबह. Yesterday I was, as I told, I was reeling under 103 Fahrenheit degree. बुखार में वायरल हुआ था या है. मैं सुन रहा था इंद्रनील को, कुछ बातें बोली इंद्रनील ने, कुछ बातें सही नहीं बोली. पहली बात तो मुझसे बेहतर हाउ द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस वर्क्स बता नहीं सकता कोई, ऐसा नहीं है. मैंने अंकित सर से बहुत सीखा है. आई थिंक अंकित सर, शैलेंद्र सर, ओमकार सर, अठौले सर एंड द स्टूडेंट्स. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग अपना वीडियो बंद करें प्लीज. और जब तक मैं बातें कर रहा हूँ, एवरीवन शुड हैव अ पेन एंड पेपर. बिना उसके सेशन में मत बैठिए प्लीज, क्योंकि ये ज्ञान का सेशन नहीं होने वाला है, इसमें मैं चीजें करवाऊंगा. सो पेन एंड पेपर ले लीजिए सब लोग. उठ के पेन एंड पेपर ले लीजिए. मोबाइल से अगर आप लोग हो तो पेन एंड पेपर ले लीजिए. ये सिर्फ सुनना नहीं है. मैंने अंकित सर से बहुत सीखा है और सीख रहा हूँ. शैलेंद्र सर, ओमकार सर, अठौले सर. एंड पिछले 17 साल में, 18 साल में 10 लाख बच्चों को जब पढ़ाया मैंने. जब बैजू में पढ़ाते थे तब मैं करियर लॉन्चर में IIT दिल्ली में पढ़ाता था. तो सीखना सबसे सीखा है मैंने. एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सबसे सीखने पे फायदा यह हुआ कि चीजों को आसान बनाने की क्षमता बढ़ गई. हाउ टू मेक थिंग्स इजी. दूसरी बात इंद्रनील ने जो बोली, यस, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है. और अगर आप लोगों ने मोदी जी को सुना, जब उन्होंने कांग्रेस को, यूएस में कांग्रेस को एड्रेस किया, we obviously are going to become the 3rd largest economy within few time. जब शुरू हुआ था we were 10th largest and we are moving fast towards the 3rd largest economy, which is a big thing, right? Coming to the context, coming to the point of today's session. सिद्धार्थ, अपना वीडियो बंद करिए प्लीज. थैंक यू. I will share my screen. Just give me 1 minute. So, इस इनिशिएटिव के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा.
आरंभ के बारे में। ये पिछले 1.5-2 साल में, जैसे इंद्रनील ने कहा, 2000 2500 स्टूडेंट्स अलग अलग प्रोग्राम्स का हिस्सा बने और इस प्रोग्राम में जिनको फाइनेंशियल एनालिस्ट एज अ करियर बनाना है, उस प्रोग्राम में पिछले 1.5 साल में 800-900 स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की। तो हमें एक चीज बहुत क्लियरली पता चला कि स्टूडेंट्स बीकॉम करते हैं, एमबीए फाइनेंस करते हैं, पीजीडीएम फाइनेंस करते हैं, कुछ लोग सीए की तैयारी करके छोड़ देते हैं, कुछ लोग एमकॉम करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और एक्चुअली में जो वो पढ़ाई कर रहे हैं उसका गैप बहुत ज्यादा है। आईटी में बहुत सारी चीजें हो रही, काफी कंपनीज हैं जो, आप जब कॉलेज से निकलते हो आईटी में कंपनी, आप उन कंपनीज के पास स्किल डेवलपमेंट करने जाओ तो आपको काफी समझ में आता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। लेकिन फाइनेंस की दुनिया में इससे बहुत कम कंपनीज हैं और शायद इसीलिए जब हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया इस प्रोग्राम का, मैं आरंभ की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं इनिशिएटिव की बात बोल रहा हूँ, इस कोर्स की बात कर रहा हूँ, तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला। क्योंकि लोग लातूर से, नासिक से, मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं, औरंगाबाद से, महाराष्ट्र के बाहर यूपी, बिहार, एवरीबडी वाज ऑफ द दिल्ली ऑफ द ओपिनियन सर बीकॉम करके कुछ फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो एक डिग्री है, पर हमें अकाउंटिंग का काम सिर्फ नहीं करना है, हमें एनालिस्ट बनना है, और हमें किसी ने सोच नहीं दिलवाई तो हमें वो सोच बिल्ड करनी है। तो ये प्रोग्राम करते रहे हम लोग, 800-900 स्टूडेंट्स अब पढ़ रहे हैं प्रोग्राम में। फिर हमें लगा कि हमें एक इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहिए जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे, प्रोग्राम की बातें नहीं होगी। प्रोग्राम के बारे में जानना है, इंद्रनील सर से आप बात कर सकते हो, प्रोग्राम के बारे में जानना है, आप मुझसे बाद में कभी भी बात कर सकते हो। हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, और पढ़ाई भी वैसी कि जिसका एक्सपीरियंस शायद आप लोगों को कभी उतना मिला नहीं है, कि कभी इस तरह की पढ़ाई हुई नहीं। और ये आइडिया इंद्रनील सर का था, संदीप सर, इंद्रनील सर जो हमारे साथ पिछले 2 सवा 2 साल से हैं। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया जहां पे, और ये इस इनिशिएटिव का आज मास्टर क्लास आरंभ, एक आप बोल सकते हो एक वेब सीरीज का नाम बोल सकते हो, इसका पहला मास्टर क्लास है आज। हम एक एक टॉपिक को कितनी आसान तरीके से आप समझ सकते हो, चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, हम वो करने वाले हैं। तो जिसको रियली में फाइनेंस सीखना है, स्टॉक मार्केट नहीं बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट सिखाने के लिए, मंजीत वीडियो बंद करिए प्लीज, थैंक यू। स्टॉक मार्केट सिखाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट्स हैं, लोग हैं यूट्यूब में, स्टॉक मार्केट नहीं, फाइनेंस, फाइनेंस की दुनिया कैसे काम करती है। मैं अगर आपको एक बात बोलूं, फाइनेंस इज इक्विवेलेंट टू लाइफ। अगर ये समझ में आ गया तो मजा आ जाता है जिंदगी में, और मैं बताऊंगा। सो ये आरंभ वो इनिशिएटिव है, ठीक है। 10:30 से आज शुरू हुआ, संडे है आज, आज 1.5-2 घंटा चलेगा अभी से, और अगले संडे को खत्म होगा, 10:30 बजे फिर से अगले संडे को है ये वाला जो मास्टर क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को एक सिमुलेशन गेम कराऊंगा। सिमुलेशन गेम क्या होता है वो बाद में आते हैं। मैं आप लोगों को फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करते हैं थोड़ा समझाऊंगा, कुछ हार्डकोर इंडस्ट्री का डेटा लेते हुए। तो जिनको रियली में इंटरेस्ट है वही रुके यहाँ पे, क्योंकि हार्डकोर पढ़ाई होने वाली है और बहुत मजा आने वाला है।
मेरी बातें अगर सबको समझ में आ गई हो और सबने अगर पेन और पेपर ले लिया हो, तो चैट बॉक्स में यस लिखोगे आप। ये दोनों चीजें, मेरी बातें अगर समझ में आ गई हो और पेन और पेपर ले लिया हो आपने, और एक रजिस्टर मेंटेन ही करो ताकि आप कभी भी इन नोट्स को रेफर कर सकते हो, तो चैट बॉक्स में यस लिखोगे आप। गाइस, मैं बीच बीच में ना कुछ दवाई लेता रहूंगा। आई होप दैट इट इज ओके, बिकॉज आप बोलोगे कि सर आपकी आवाज तो ठीक आ रही है, बट दैट्स योर एनर्जी विच इज मेकिंग मी स्पीक, राइट? So I'll just take medicine in between and then I want yes from all of you. कोई 7-8 लोगों ने yes किया है। जिनको yes नहीं बोलना है या जिनको इंटरेक्ट नहीं करना है, वो सेशन छोड़ के जा सकते हैं। It is for the benefit of everyone. मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे सेशंस करते हुए। So I want everyone to participate. बाकी लोग, can I get replies fast? इतनी बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए गाइस, which only means that बस संडे फ्री है तो आ गए हो आप लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, मैं ना एक बात हमेशा बोलता हूं और ये आप समझ सकते हो शायद। 12वीं में मेहनत करनी पड़ती है आईआईटी जाने के लिए, ग्रेजुएशन में मेहनत करनी पड़ती है आईआईएम्स जाने के लिए। 2 बार मेहनत नहीं की ना, तो जिंदगी में 1 बार मेहनत और करना पड़ता है। मान लो वो 2 छूट गया, 1 बार मेहनत करनी पड़ती है। और आज की तारीख में मेहनत करना और किस डायरेक्शन में मेहनत करना, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज ए कंपनी वी आर कमिटेड टू हेल्प यू। आपको अपने करियर के बारे में सीरियस होना पड़ेगा। इसीलिए जितना मैं आपसे कहूंगा रिस्पॉन्ड करो, बताओ कितना समझ में आया, बी ओपन। ये कंपलसरी तो है नहीं किसी के लिए, और मुझे ये पूरा भरोसा है, इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, कि अगर कोई मुझे 15 मिनट भी सुनता है, उसे पता है कि हाँ रोहित सर के टच में है, तो करियर के डिसीजंस सही डायरेक्शन में जाएंगे। वो मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वो मेहनत करवाते हैं। As a company also we do the same. That's what many people like us, some of them don't like us, because हम लिटरली में मेहनत कराते हैं। नौकरी ढूंढने के लिए लोग हमारे पास नहीं आते हैं, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए लोग हमारे पास आते हैं। सो दोबारा बोलूंगा, मास्टर क्लासेस जब होती हैं, पहली बात तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना, अपने स्केड्यूल में लिख के रखना। अगर इंटरेस्ट है तो संडे को ना 1.5-2 घंटे मैं कहीं और पे बिजी नहीं रहूंगा, और अपने घर वालों को और बाकी लोगों को भी बोल के रखना। पहली बात, तभी ध्यान देके सुन सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरी बात, जब आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया आरंभ का, तो संडे को पता है कि हाँ बैठना है, पढ़ाई करनी है, उसके बाद कुछ काम दिया जाएगा तो मैं कर लूंगा। अगर करियर बनाना है तो एक लास्ट पॉइंट बोल के शुरू करता हूं। 2023 फरवरी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल सीतारमन मैम ने क्या बोला? 62,000 पे चल रहा है सेंसेक्स। 1.5-2 साल में इफ मोदी कम्स बैक अगेन, मोदी गवर्नमेंट, 1 लाख टच होने वाला है। इक्विटी एनालिस्ट की डिमांड आसमान छुएगी। इससे बढ़िया वक्त नहीं हो सकता अगले 4 से 6 महीने में कि आप इक्विटी एनालिस्ट के लिए तैयारी करो एंड कंपनी में ज्वाइन करो एज अ एनालिस्ट। दिस हैज बीन टोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो हम पिछले 1 साल से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल एनालिस्ट का डिमांड और बढ़ने वाला है। सो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है आप लोगों को, सीखिए, मजा आएगा। फाइनेंस को इस तरह शायद कभी देखा नहीं गया। देखते हैं, मुझे भी मजा आएगा आप लोगों से सीखकर। आप लोगों से सवाल पूछेंगे आप लोग जब,
और आप लोगों को भी मजा आएगा कुछ नई चीजें जानने। बिफोर आई स्टार्ट, क्विकली, मेरे बारे में तो आपको पता चल गया, आपके बारे में मुझे पता करना है। ध्यान से सुनना। मुझे दो बातें चाहिए। आपका लास्ट क्वालिफिकेशन, आपका लास्ट क्वालिफिकेशन, अगर कोई बीकॉम है तो बीकॉम, एंड अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो वर्किंग प्रोफेशनल विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, और जितना भी। चैट बॉक्स में डालिए जरा, 2 मिनट देता हूं आप लोगों को। आई शुड नो द क्राउड दैट आई एम टॉकिंग टू। While I was talking, अंकित सर ने एक इंपॉर्टेंट डेटा दिया जो मुझे बताना जरूरी लगता है कि टीयर 2 सिटीज में, टीयर 2 सिटी का मतलब है नॉट द बैंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली ऑफ द वर्ल्ड, नॉट द हैदराबाद ऑफ द वर्ल्ड। से फॉर एग्जांपल इंदौर, अहमदाबाद, जयपुर, भुवनेश्वर। इकोनॉमिक टाइम्स में आया था टीयर 2 सिटीज में एनालिस्ट की डिमांड और बढ़ रही है। ये वही बूम है जो कि आईटी में पिछले 2-3 साल पहले देखा गया। अब ऑब्वियसली आईटी में कुछ चीजें स्टैग्नेंट हो रही हैं, वो ऑब्वियस है। So I would like to share this data also with you, which is a very important data just shared with me by Ankit sir. सब लोगों ने बता दिया अपने बारे में? सिद्धार्थ was the last one. सब लोगों ने नहीं बोला अभी तक. I can't see all the people mentioning. So it started with Javed. Okay. जावेद, पीडब्ल्यूसी के कौन से डिवीजन में हो आप? You can mention that in the chat box. अभिषेक, what are you doing post MBA? आपका जो 5 साल का एक्सपीरियंस है वो किस में है? तेजस सर, आप पढ़ाते हो? ऑसम। कहाँ पढ़ाते हैं सर आप? Prashant, every session is useful. Doesn't matter what kind of CTC you are getting. If you want to get into, so you are a SAP consultant, right? Now, if you want to get into an analyst profile, post your being a SAP consultant, then this is a session where we are just going to talk and learn concepts, right? So if you love finance, so this is the session for you. Doesn't matter what CTC you get, right? That's an answer. But if you want to have a separate one-to-one with me with respect to your career decisions and how do you want to switch your career, definitely we can have a one-to-one, which students do with me. Yeah. Okay. CA Inter is done. Okay. Tax consultant and audit. Okay. Fair point. Fair point, Javed. Thank you. Relationship manager in broking firm. Okay, Abhishek. Got it. Freelancer. Okay. Okay. Got it, Tejas sir. Thank you. All right. Cool. ठीक है, चलते हैं, चलिए. Let's start. So मैं कुछ चीजें पहले बोलूंगा. Just closing the video for some time now. थोड़ा नेटवर्क का भी इशू हो सकता है. देखो, how the world of finance works. इसमें ना 3-4 चीजें हैं. मतलब
तो पहले तो ये है कि फाइनेंस अकाउंटिंग से अलग है। पहले तो ये बात दिमाग में रख लेना। शिवम वीडियो बंद करना अपना प्लीज। शिवम प्लीज क्लोज योर वीडियो, थैंक यू। फाइनेंस अकाउंटिंग से अलग है, ये आप लोगों के जहन में बैठ जानी चाहिए। फाइनेंस इज नॉट इक्विवेलेंट टू अकाउंटिंग। इनफैक्ट जहां अकाउंटिंग खत्म होता है, फाइनेंस वहां से शुरू होता है। आई रिपीट, अकाउंटिंग जहां पे खत्म होता है, फाइनेंस वहां से शुरू होता है। अगर आप जरा सोचो, मंजू स्विच ऑफ योर वीडियो। अगर आप जरा सोचो, क्रिकेट मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच एंड बिजनेस, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। क्रिकेट मैच में प्लेयर्स हैं, कोच हैं, सपोर्ट स्टाफ है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस मैच को जीतने या हारने के लिए। सिमिलरली किसी भी बिजनेस का मोटिव क्या होता है? किसी भी बिजनेस का, कोई भी बिजनेस, चाय की दुकान हो, स्किलेज हो, या गूगल हो, या पीडब्ल्यूसी हो, या कोई ब्रोकरेज फर्म, दैट्स अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का मोटिव क्या होता है? सिंपल आंसर है, टू अर्न प्रॉफिट्स। बहुत ही सिंपल आंसर, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है। डिटेलिंग में बाद में। क्रिकेट मैच का उद्देश्य क्या होता है? जीतना। नहीं जीत पाए तो हारना। कुछ लोग बोल सकते हैं टाई टाई भी हो सकता है, सपोर्ट। किसी भी बिजनेस का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। नहीं हो पाया तो लॉस बोलते हैं उसको। प्रॉफिट कौन कमाता है? जैसे क्रिकेट में खेलने वाले, सपोर्ट स्टाफ, कोच, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीतने के लिए। बिजनेस में हर कोई इंसान कंपनी में रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉफिट के लिए। जैसे एचआर हो जाए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो जाए, परचेजिंग डिपार्टमेंट हो जाए, बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो जाए, एडमिन डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट के लोगों के एक्शंस पे वो कंपनी प्रॉफिट करेगी कि नहीं, डिपेंड होता है। तो मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? मेरा सवाल ये है, सवाल भी पूछ रहा हूं लेकिन जवाब मैं दे दूंगा। क्रिकेट मैच में एक ऐसा इंसान है जिसके होने ना होने से गेम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जीतने हारने पे। लेकिन अगर वो नहीं हो तो गेम बड़ा ही बोरिंग हो जाएगा। और वो इंसान है स्कोर कीपर, जो स्कोर मेंटेन करता है। जस्ट इमेजिन करो, आप क्रिकेट मैच देख रहे हो टीवी में, और आपको वो स्कोर वगैरह नहीं दिख रहा है, रन रेट नहीं दिख रहा है, कितने बॉल बाकी हैं, कितने विकेट्स बाकी हैं, तो बड़ा बोरिंग हो जाएगा, करेक्ट? उसी तरह कंपनी में कंपनी में एक इंसान के होने ना होने से प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसके होने से पता चलेगा कि हमने प्रॉफिट बनाया है कि नहीं बनाया है। और उस इंसान का नाम है अकाउंटेंट। तो स्कोर कीपर इन क्रिकेट मैच इज इक्विवेलेंट टू अकाउंटेंट इन अ बिजनेस। जब छोटा फर्म होता है तो सीईओ या सीएफओ वही अकाउंटेंट का काम करते हैं।
जैसे जैसे आप कंपनी बढ़ती है तो ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसलिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग बनाना पड़ता है, इनवॉइसेस आते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। मैं आपको ये बोल के ये बताना चाहता हूं 2-3 चीजें। नंबर 1, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 2 अलग अलग चीजें हैं। फाइनेंस is the act. Finance is the act of making profit for a company. Accounting is the act of calculating profit. Number 2, अकाउंटिंग जब खत्म होती है वहां से फाइनेंस शुरू होता है। एंड नंबर 3, अगर किसी ने कहा कि कंपनी में कौन ऐसा है जो नॉन फाइनेंस पर्सन है, तो उसका जवाब है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट इज ए नॉन फाइनेंस पर्सन। अगर कोई एचआर में है, कोई मार्केटिंग में है, कोई बिजनेस डेवलपमेंट में है, कोई ऑपरेशंस में है, और अगर वो बोले कि मैं हूं नॉन फाइनेंस पर्सन, तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहा है नॉन अकाउंटिंग वाले वर्ड से। क्योंकि जब आप कहते हो आई एम ए नॉन फाइनेंस पर्सन, इसका मतलब ये है मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरे एक्शंस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इंपैक्ट करते हैं। और अगर आप सोच के देखो, ये बहुत ही रिडिकुलस स्टेटमेंट है। सो कंपनी में कौन है जो नॉन फाइनेंस है? ओनली वन पर्सन, विच इज अकाउंटेंट। बाकी सारे फाइनेंस पर्सन है। वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा एग्जांपल भी देता हूं, सोच के देखना। और फाइनेंस इतना इतना ब्यूटीफुल है, हर चीज को घर से जोड़ सकते हो, हर चीज को घर से जोड़ सकते हो। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने घर का बैलेंस शीट बनाया, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया। शायद इतने डाउन लेवल पे, मतलब ग्रास रूट लेवल पे हमने चीजें सोची नहीं, कुछ लोगों ने बनाया होगा शायद। जो मारवाड़ी फैमिलीज, मेरे काफी दोस्त हैं वो जो चौपड़ी बनाते हैं, राइट, जो दुकान चलाते हैं, वो अकाउंटिंग है। जब वो दिवाली के टाइम पे भगवान के सामने रखते हैं, दैट्स अकाउंटिंग। क्रेडिट डेबिट, उसी को आपने सॉफ्टवेयर में टैली बोल दिया, खाता बुक बोल दिया, एंड सो फोर्थ, बिकॉज ट्रांजैक्शंस बढ़ गए। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि कोई भी इंसान अकाउंटेंट को छोड़कर ये नहीं कह सकता कि आई एम ए नॉन फाइनेंस पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एचआर। सिंपल से एग्जांपल लेता हूं। एचआर जब आपका कंपेंसेशन डिसाइड करता है, डू यू थिंक द कंपेंसेशन डिसीजन जो होता है, इट इज ओनली अ ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन? नो, इट हैज टू हैव अ फाइनेंशियल एंगल टू इट। सिमिलरली, से फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग में हो, से आप किसी रिटेल स्टोर के मार्केटिंग में, डीमार्ट ले लेते हैं। आपको किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को कस्टमर के सामने रखना है ताकि वो देखे और खरीदे। तो आपने कैंपेन रन किया, होर्डिंग्स लगाए, कैनोपी लगाया। वो होते हैं ना, डीमार्ट में बैठे होते हैं कैनोपी लगाकर, सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग आपको बोलते हैं प्रोडक्ट के बारे में। कैनोपी लगाया, होर्डिंग्स लगाए। डोंट यू थिंक इट्स देयर इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन दैट? देयर इज, राइट? एंड डू यू थिंक दिस डिसीजन इज प्योर प्ले मार्केटिंग डिसीजन? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि पूछा जाएगा इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जो पूरी मार्केटिंग की, इसमें कितने आई बॉल्स उस प्रोडक्ट की तरफ नजर आए, कितने फुटफॉल्स हुए, फिर फुटफॉल्स के बाद कितने लोगों ने इंक्वायरी की। यही है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट? सो यू अंडरस्टैंड देयर इज अ फाइनेंशियल एंगल टू इट। अनदर एग्जांपल, से आप इन्वेंट्री मैनेज करते हो। इन्वेंट्री, दिवाली का टाइम आ रहा है, आप कॉटन किंग मान लो, एक शर्ट का ब्रांड है, आप इन्वेंट्री मैनेज करते हो।
और आपके स्टोर ने बोला कि दिवाली का टाइम आ रहा है, हमें ये साइज का शर्ट ज्यादा चाहिए। अब आप अपने वेयर हाउस में उस तरह का शर्ट कितना डंप करके रखोगे? इज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्योंकि अगर ज्यादा कर लिया और उतना ज्यादा अगर आपका परचेज नहीं हुआ तो वो खराब हो जाएगा, और अगर कम किया और डिमांड ज्यादा आ गया तो कंपनी उतना सेल नहीं कर पाएगी। अगेन, डू यू रियलाइज दिस इज नॉट अ परचेज डिसीजन, इट हैज गॉट लॉट ऑफ फाइनेंशियल एंगल टू इट। सो कहने का मतलब मेरा ये है, those who are fresher or working professional, doesn't matter, every action of yours impacts organization's profitability. आपने आधे घंटे का ब्रेक लिया ऑर्गेनाइजेशन में, शायद कभी इस तरह सोचने का मौका नहीं मिला हो। आधे घंटे का ब्रेक लिया, will that impact organization's profitability? Absolutely. आपने अपने काम को 8 बजे के बाद, फॉर एग्जाम्पल 10 से 8 का शिफ्ट है, आपका काम 9 बजे तक चल रहा है, हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, पर इन सब का देयर इज अ फाइनेंशियल इम्पैक्ट। जस्ट इमेजिन एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हर एक को ये बात पता है, हर एक को पता है ये बात, दैट्स कॉल्ड एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? पर ऐसा होता नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग अगर ज्यादा हैं जिनको पता है कि हमारे एक्शन से ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, इन कंपैरिजन टू उन लोगों का जिनके एक्शन से नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल होगा। पर अगर वो वाले लोग ज्यादा हो गए जिनके काम से ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन लॉस में रहेगा। तो ये जो मैंने 15-20 मिनट आपसे बात की, मैंने आपको ये समझाया अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। भी मैंने प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई बात की नहीं है, थोड़ा और मजा आएगा आगे जाके, थोड़ा और बेसिक सवाल पे हम बात करेंगे, लेकिन इतना आपको अभी समझ में आ जाना चाहिए कि आप बोलोगे आई एम अ फाइनेंस पर्सन, वेयर अकाउंटिंग एंड्स फाइनेंस स्टार्ट्स। एंड अगर वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस मुझे समझना है तो मुझे हर चीज को एकदम बेसिक लेवल पे आके समझना पड़ेगा, then only I will be able to understand the world of finance. अभी तक 15-20 मिनट जो मैंने बात की seems interesting, समझ में आई सारी बातें। जिसको जो नोट बनाना है आप बना चुके होंगे। Can I get a quick yes on the chat box before I move to the next point? Are you people getting interested? मजा आ रहा है सुनने में? Okay. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा घबराओ मत, इसमें 14 ऐसे कॉलम्स हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इंटिमिडेटिंग नंबर है ये। जब इंद्रनील सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया तब INSEAD, so I was fortunate to study from world's best university, और तब मुझे मौका मिला कुछ फेमस प्रोफेसर से बात करने का एंड उनसे चीजों को सीखने का। ये जो स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है, अभी इसको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, पर ये गेम हम करने वाले हैं आज, और आज तो नहीं होगा ये, क्योंकि इस गेम सीखने के, इस गेम को करने के लिए
कुछ बेसिक्स जानना जरूरी है जो हम आज कवर करेंगे। पर ये गेम ऐसा है, वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में पहला एंगल है फाइनेंशियल एनालिसिस। तो ये 14 कंपनीज हैं, ए से लेकर एन, और उन 14 कंपनीज का बैलेंस शीट और कुछ रेशियोज आपके सामने दिए गए हैं। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। मैं 14 कंपनीज के नाम भी दूंगा। सो ए बी सी डी। तो ए कौन सी कंपनी के साथ, ए का जो बैलेंस शीट है या रेशियोज हैं वो कौन सी कंपनी से मैच करता है। इसका मतलब आप सोच के देखो, इस गेम को करने के लिए लगभग 8 घंटे लगते हैं। इसका थोड़ा छोटा वर्जन हम कर रहे हैं लाइव। जब मैं ऑफलाइन कराता हूँ इस गेम को तो 8 घंटे लगते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। आई डिड दैट इन IIM। लेकिन विद स्किलेड स्टूडेंट्स जब हमने ये गेम किया तो हमने 4 घंटे में, 5 घंटे में, बहुत मजा आया। मतलब इस गेम को 800 लोगों के बीच में भी किया गया है। पर जब छोटी कम्युनिटी होती है तो थोड़ा और ज्यादा इंटरेक्शन ज्यादा होता है। तो ये गेम हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट है। वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल मार्केट्स, द आर्ट एंड साइंस ऑफ वैल्यूएशन, ये सारे वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस का ना पार्ट है। एंड स्लोली हम लोग अलग अलग मास्टर क्लास में ये सारी चीजें सीखेंगे। आने वाली चीजों को सीखने के लिए, मतलब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव सीखने के लिए, अगर मैं बोलूं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या है, 1 मिनट के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, कैश इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसका मतलब कि अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसके कंपनी के बैंक अकाउंट में 0 पैसा है? द आंसर इज यस। अगर आप बोलोगे ये पॉसिबल कैसे है, विल टॉक अबाउट इट। या कंपनी अगर लॉस कर रही है तो पॉसिबल है कि उसके अकाउंट में पैसा हो? द आंसर इज यस। ये फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है। इसीलिए आने वाले दिनों में आप समझोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट की अहमियत कम है, बिकॉज ये हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं। फाइनेंस समझना है ना तो कैश समझना पड़ेगा, और अगर कैश समझना पड़ेगा तो कैश फ्यूचर देखता है। फाइनेंस इज ऑल अबाउट फ्यूचर। और अगर फ्यूचर है, फाइनेंस इज ऑल अबाउट फ्यूचर, मतलब रिस्क। डेफिनेटली। किसको पता था एक ब्लैक स्वैन इवेंट आ जाएगा 2020 में? अब ये क्या होता है ब्लैक स्वैन इवेंट? कोविड। किसको पता था कि ब्लैक स्वैन एक टर्म है। कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड्स में यूज करूंगा ना, आप लोग नोट करते रहना। काफी बार इंटरव्यू में ऐसे वर्ड्स यूज करने पे सामने वाले को लगता है कि आप वेल रेड हो, पढ़ाई करके आए हो। वेल रेड बोलते हैं उसको। ब्लैक स्वैन, ब्लैक स्वैन मतलब ऐसा इवेंट जिसके बारे में पता ही नहीं था, आ गया। सो फाइनेंस अगर फ्यूचर है, देन रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट इज एब्सोल्युटली अ कंपोनेंट। एक किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है। इसमें एक स्टेटमेंट है जो मैं देना चाहूंगा आप लोग, काफी स्ट्रांग है। आपकी उम्र में यहाँ पे 20 साल से लेकर 27 साल के लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग शायद इसके ऊपर भी होंगे। पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। मॉर्गन हाउसल उस किताब के ऑथर हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन डीलिंग विथ मनी। सो एक स्टेटमेंट वो ये बोलते हैं कि कोई भी सिचुएशन, नो सिचुएशन इज एज गुड और एज बैड इट सीम्स। कोई भी सिचुएशन बहुत अच्छा या बहुत बुरा दिखता जो है, ऐसा होता नहीं है। और इसीलिए जब सिचुएशन अच्छी चल रही होती है
सिचुएशन जब अच्छी चल रही होती है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो एक कंपोनेंट को शाबाशी देना बहुत जरूरी है और वो है लक। जब सिचुएशन अच्छी चल रही होती है जिंदगी में तो लक को भूलना नहीं है, क्योंकि अपनी एफर्ट तो है ही है। लक ऑल्सो हैज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और जब सिचुएशन सही नहीं है एज पर आवर प्रायोरिटी, ये सही नहीं हो रहा है या थोड़ा और ये चाहिए था, व्हाटएवर, तो रिस्क को नहीं भूलना है। So no situation is as good or as bad it seems. So when things are going good, लक को नहीं भूलना है, लक को नहीं भूलना है। और दूसरी बात, ह्यूमिलिटी को नहीं भूलना है। जमीन से जुड़ी हुई बातें, ह्यूमिलिटी। और जब चीजें बुरी हो रही हो तो रिस्क को नहीं भूलना है कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। और फॉरगिवनेस और कंपैशन होना चाहिए। ये मंत्र है जिंदगी में आगे बढ़ने का। आपको लगेगा सर ये फाइनेंस की क्लास में ये मंत्र कैसे आया? फाइनेंस एंड लाइफ आर टू पैरेलल थिंग्स। और मेरा ऐसा मानना है, मैं जो बोलता हूं आपको, जब भी जहां भी कुछ मैंने बोला है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, आई फॉलो इट माई सेल्फ। इसीलिए शायद वो दिल से निकलता है और दिखता भी है। सो जब चीजें बुरी चल रही हो तो रिस्क ध्यान में रखना है और कंपैशन रखो और फॉरगिवनेस रखो। और जब चीजें अच्छी चल रही हो तो लक फैक्टर रखो दिमाग में। सब कुछ आपके थ्रू नहीं हो रहा है। एंड ह्यूमिलिटी। फैसिनेटिंग बुक है, मतलब ऐसा जिंदगी के पन्ने खुल जाते हैं। वेदर इट इज यू आर 20 years old और 50 years old, डजंट मैटर, राइट? अब वापस आते हैं थोड़े नंबर्स पे। तो फाइनेंशियल, जो मैंने कहा, फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस समझने के लिए 3-4 स्टेजेस हैं। तो फाइनेंस पर्सपेक्टिव समझने के लिए, फ्यूचर समझने के लिए, क्योंकि कैश इज द फ्यूचर। वो बोलते हैं प्रॉफिट इज वैनिटी, कैश इज रियलिटी। वो कहते हैं प्रॉफिट इज वैनिटी, कैश इज रियलिटी। तो फाइनेंस पर्सपेक्टिव समझना है, फाइनेंशियल मार्केट समझना है, या आर्ट एंड साइंस ऑफ वैल्यूएशन समझना है, अगर ये समझना है तो फाइनेंशियल एनालिसिस पहले समझना पड़ेगा वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में। इसीलिए हमने फाइनेंशियल एनालिसिस पहले लिया हुआ है। अगेन द क्विक केस एज ऑफ नाउ, ऑल विथ मी? मजा आ रहा है? दिमाग में जा रही है चीजें क्विकली? And keep writing, whatever you're understanding, keep writing. Would like quick reply from all of you before I start talking. जल्दी सब लोग, कैन आई गेट अ रिप्लाई? अभी तक सब कुछ ठीक? सात लोगों ने रिप्लाई दिया है। आई वांट रिप्लाई फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस, आई एम वेटिंग फॉर यू टू रिप्लाई। अभी तक सब कुछ समझ में आया? कैन आई गो अहेड? ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। तो ये वाला का थोड़ा बाद में आते हैं, अभी तो बेसिक्स पे काम करेंगे। तो ये आपके सामने एक बैलेंस शीट है। दिस अ बैलेंस शीट। लेफ्ट साइड में एसेट्स हैं। एसेट्स का मतलब होता है, सो ओके,
बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, मैं बेसिक्स पे आ रहा हूं दोबारा, इंपॉर्टेंट है बिफोर वी प्ले द गेम। दो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं कंपनी के बारे में अगर जानना है तो। दो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, एक बैलेंस शीट एंड एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पता है सबको? बैलेंस शीट में दो हेडिंग्स होते हैं, एक होता है एसेट्स, एक होता है लाइबिलिटीज। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स का डेफिनेशन है कि व्हाट डज अ कंपनी ओन, कंपनी क्या ओन करती है, दैट इज एसेट्स। एंड लाइबिलिटीज जो होता है, लाइबिलिटीज शेयर होल्डर्स इक्विटी आते हैं इस पे। तो इसका मतलब क्या होता है कि इन एसेट्स को फाइनेंस कहां से मिला। सो इजी करना है तो एसेट्स मतलब व्हाट डज अ कंपनी ओन, एंड लाइबिलिटीज मतलब व्हाट डज अ कंपनी ओ। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है OWE, कि कंपनी कितना ओ करती है। एसेट्स बनाने के लिए कहीं से पैसा लिया गया होगा, बिजनेस चलाने के लिए कहीं से पैसा लिया गया होगा। तो हाउ आर एसेट्स फाइनेंस्ड, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, इजी लैंग्वेज में व्हाट डज द कंपनी ओ, एंड एसेट्स में व्हाट डज द कंपनी ओन। ठीक है, अभी एक एक वर्ड जरा, एक एक पैरामीटर जो दिए हुए हैं यहाँ पे, इसको समझते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं एसेट्स में अपने मिशन को फुलफिल करने के लिए। क्या मिशन है कंपनी का? टू अर्न प्रॉफिट्स, एज सिंपल एज दैट, जो हमने शुरुआत में देखा। तो कंपनी इसीलिए वो एसेट्स पे इन्वेस्ट करती है, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, ओके, सो एक कंपनी है, सो हैव यू हर्ड दिस नेम? बिना गूगल करके बताना मत। ओके, ये दुनिया की बहुत बड़ी आइसक्रीम कंपनी है, ठीक है, हैगन डाल्स, ठीक है, ये दुनिया की बहुत बड़ी आइसक्रीम कंपनी है। अब हैगन डाल्स owns the ice cream it is going to sell. Obviously, it owns the factories to make that ice cream. It also owns the trucks to deliver it, right? So assets, ये सारी चीजें ही हैं अगर आप गौर करो। So in a way, अगर मैं चीजों को और आसान कर दूं तो assets are the company itself. हैगन डाल्स एक कंपनी है, नेदरलैंड्स की है, वो आप चेक कर सकते हो शायद। तो it owns the ice cream that's going to sell. It owns the factories
जहां पे आइसक्रीम बनती है, एंड ऑल्सो इट ओन्स द ट्रक्स दैट इज यूज्ड टू डिलीवर इट. So assets are not beyond this. These are assets of that particular company. अच्छा, अब देखो assets, अगर आप ये गौर करो यहाँ पे, ये किस ऑर्डर में लिखे गए हैं? ये ना एक स्टैंडर्ड बैलेंस शीट है. कोई भी लेटेस्ट बैलेंस शीट आप देखोगे किसी भी कंपनी का, वो इसी तरह दिखता है जो आपके सामने दिख रहा है. ठीक है, तो ये किस ऑर्डर में लिखे गए हैं ये समझना जरूरी है. ये कोई रैंडम ऑर्डर नहीं है. तो एसेट्स आर ऑर्डर्ड किस ऑर्डर में? बाय द डिग्री टू विच दे कैन बी चेंज्ड इनटू कैश. ध्यान रखना, by the degree they can be changed into cash. मतलब क्या? जिन एसेट्स को आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो 1 साल के अंदर, उसको करंट एसेट्स बोलते हैं. आई रिपीट, जिन एसेट्स को आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, और वो इजीली का मतलब है 1 साल के अंदर, उसको करंट एसेट्स बोलते हैं. और जिनको आप 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उनको नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं. आपको एसेट्स क्या होता है पता चल गया. आपको ये समझ में आ गया कि बैलेंस शीट में जिस ऑर्डर में एसेट्स लिखे जाते हैं वो कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है? द डिग्री थ्रू विच, मतलब द डिग्री बाय विच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश. जो जितनी जल्दी कन्वर्ट होगा कैश में, उस ऑर्डर में वो लिखा जाता है. 1 साल के अंदर अगर हो गया कन्वर्ट तो उसको करंट एसेट्स बोलते हैं, और 1 साल के बाद तो उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स. और अब जब आप वो पढ़ोगे तो आपको दिखता है हाँ बात सही है, लॉजिकल है, इसी ऑर्डर में है. इसको जरा आगे पढ़ते हैं. पहला क्या टर्म है हमारा? कैश. कैश है एक. सो जो पहला वाला टर्म है अभी मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं. आपने बोला सर कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी क्यों लिखा आपने? हाँ तो सिर्फ कैश लिखा हुआ है. मैं आपको थोड़ा गेम में लेके जाना चाहता हूँ. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज. ठीक है, अब अगर आप गौर करो थोड़ा सा ध्यान से, अब आपको ये तो समझ में आ गया एसेट्स में कैसे लिखे गए हैं. ये यहाँ पे करंट एसेट लिखा नहीं गया है, बट आपको समझ में आता है कि एसेट्स को कौन से ऑर्डर में लिखा जाता है. द डिग्री बाय विच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश. ठीक है, नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये जो कंपनी है F&G, देखो टोटल एसेट सबका 100 है. ठीक है, पर F&G की बात करो, अगर आप गौर करो तो मोर देन 50% ऑफ देयर एसेट्स कैश में है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज में. और ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है. स्ट्रेंज क्यों है? क्योंकि मतलब क्वेश्चन दिमाग में आता है, कोई कंपनी इतना क्यों कैश होल्ड कर रही है? कोई कंपनी इतना कैश क्यों होल्ड कर रही है? और ये एक डीप क्वेश्चन है फाइनेंस में आज की तारीख में. एक बड़ा डीप क्वेश्चन है.
कि why companies hold more cash than ever before. मैं अगर आपको एक बात बोलूं, आज से ऑब्वियसली हम इस क्वेश्चन पे डिटेल में आएंगे बाद में कि कोई कंपनी इतना कैश क्यों होल्ड करती है। आज से 2 से 3 साल पहले, 2 साल पहले की डेटा देता हूं मैं आपको। एप्पल, मैं आपको बीच बीच में ऐसे डेटा देता रहूं। एप्पल 2-3 साल पहले, 2 साल का डेटा ले लो आप, यूज टू हेल्ड $250 billion in cash in the account. $250 billion, huge money, right? एंड हम आप ये नोट कर सकते हो कि 2-3 साल पहले एप्पल होल्ड यूज टू हेल्ड more than $250 billion in cash. पर एक बात जरूर है कि जब हम सोचते हैं, अगर मैं ये बात आप पे थोड़ा लागू करूं मतलब अगर हम थोड़ा सोचे बैठ के कि हाँ, कंपनीज इतना कैश क्यों रखती है अपने पास, तो 2-3 जवाब आते हैं। अभी मैं आप लोगों से पूछ नहीं रहा हूं कुछ, अभी आई एम जस्ट टॉकिंग टुडे, राइट? ऐसे 3 जवाब आते हैं दिमाग में। पहला क्या? पहला आता है कि इतना कैश इसलिए कंपनी रखती होगी, इट इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर अनसर्टेन टाइम्स। इट्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब जैसे कोविड आ गया, इस तरह के अनसर्टेन टाइम के लिए देयर हैज टू बी एन इंश्योरेंस पॉलिसी। एक वजह समझ में आता है। दूसरी वजह समझ में आती है कि व्हाट अबाउट मेकिंग फ्यूचर एक्विजिशंस। फ्यूचर एक्विजिशन करना है, बाई करना है किसी कंपनी को, उसके लिए कैश चाहिए। और तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि अभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है नहीं, इसीलिए कैश बहुत सारा पड़ा हुआ है अकाउंट में। सो ठीक है, so these can be 3 fundamental reasons, and we will come back to this question again. Why is there so much of cash that लोग रखते हैं अपने पास? ठीक है। एक और है, ये जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है ना, ये ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, जो सेफ होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एंड इनको क्विकली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए इसको एक साथ लिखा जाता है, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, इसीलिए काफी बैलेंस शीट में आपको ये एक साथ दिखेंगे, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मैं एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा और मैं आपसे पूछूंगा वो टर्म समझ में आया कि नहीं। सो आपको अभी ये कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज समझ में आया बैलेंस शीट में? एंड आई वांट क्विक रिप्लाई बिफोर आई, एंड आप अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि इसके बाद नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद मैं डायरेक्टली सवाल करूंगा। मजा आ रहा है? आर यू गेटिंग इंटरेस्टिंग? आर यू गेटिंग इनटू द ग्रूव? अभी तो हम वैसे ही बहुत ऊपर सतह में हैं, पर मजा आ रहा है कि नहीं? Guys, can I get some quick responses, please? सबने नोट कर लिया? Can I go ahead with the next one? Few more replies, please. Few more replies before I take the next one. Account receivables. जैसे मैंने आपसे कहा, कंपनीज कैश इसलिए होल्ड करती हैं जिसका 3 वजह हो सकती हैं फंडामेंटल। एक, आप
कभी भी किसी चीज को समझने के लिए ना ऋषिकेश, घर वाले एग्जाम्पल पे आ जाना। घर वाले एग्जाम्पल पे हम क्यों बोलते हैं इमरजेंसी फंड चाहिए, ऐसा घर पे रखा होता है इमरजेंसी फंड, ताकि इंश्योरेंस हो किसी अनसर्टेन इवेंट को लेकर। एक वजह वो हो गई। दूसरी वजह, कंपनीज एक्वायर करती हैं दूसरी कंपनीज को, उसके लिए पैसा चाहिए, राइट। और तीसरी वजह, जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है तो कंपनी कैश कहाँ यूज करे, क्योंकि कंपनीज भी इन्वेस्ट करती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज कोई लैंड खरीद लेती हैं, कंपनीज स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करती हैं, राइट। तो जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं तो कंपनी के अकाउंट में कैश जमा होते रहता है, राइट। तो ऋषिकेश ये जवाब है वाई कंपनी होल्ड कैश, राइट। लेकिन इसका थोड़ा और ये थोड़ा डीप है, ये फाइनेंस का डीप अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैंने कहा आपको, एप्पल के पास 250 बिलियन कैश पड़ा हुआ है 2 साल पहले। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, राइट। कुछ कंट्रीज के जीडीपी से ज्यादा है ये पैसा, राइट। ऐसा क्यों समझेगा आपको, पर बेसिक लेवल पे मैंने आपको बताया ऋषिकेश, जनरली इसीलिए कंपनीज कैश होल्ड करती है। समझ में आया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अकाउंट रिसीवेबल, अच्छा मैंने क्या बोला आपको, एसेट्स किस ऑर्डर में बताए गए हैं? एसेट्स बताए गए हैं आपके उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आप जितनी जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, करेक्ट। 1 साल के अंदर करंट एसेट्स, 1 साल के ऊपर नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब ये वो पैसा होता है जो कंपनी एक्सपेक्ट करता है अपने कस्टमर से पैसा मिलेगा फ्यूचर में। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने किसी से सामान खरीदा और आपने कहा कि मैं 3 महीने बाद आपको पैसा दूंगा। तो जिससे सामान खरीदा उसके बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल्स में वो अमाउंट लिखा होगा कि फ्यूचर में 3 महीने बाद आप उसको उतना पैसा देने वाले हो। उसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल, AR। सो जैसे जैसे ट्रस्ट ग्रो होता है बिटवीन अ कस्टमर एंड अ कंपनी, कंपनी अलाउ करती है कस्टमर्स को बाद में पे करने के लिए। जैसे अगर आप गौर करो, यहाँ पे मैं एक टर्म यूज करूंगा, लेट मी एनोटेट। यहाँ पे मैं टर्म यूज करूंगा B2B, B2C, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। चलो सबसे पहले एग्जांपल दो मेरे, B2B कंपनीज के एग्जांपल दो बिना गूगल करके। फटाफट चैट बॉक्स में लिखो, B2B एंड B2C दोनों लिखो, स्टार्ट हो जाओ। B2B एंड B2C, चलो जल्दी, क्या हो गया, गूगल कर रहे हो क्या? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, जल्दी गाइस, क्या हो गया? अरे ऋषिकेश, ऐसे जवाब नहीं देना है, B2B डैश B2C डैश ऐसे जवाब देना है। क्या लिख रहे हो आप? गाइस, डोंट यू नो व्हाट इज B2B एंड B2C? नहीं पता अलग बात है, मैं बता दूंगा आपको, बट व्हाई कांट यू गिव एग्जांपल्स टू मी? अरे जावेद, कैन यू गिव एग्जांपल्स?
आई डेंट वांट एनी जेनरिक आंसर। इतना वक्त क्यों लग रहा है आप लोगों को? यही बात मैं आप लोगों को कह रहा था। यही बात मैं, अरे मेरे को ये नहीं चाहिए यार विकास, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। जब तक एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आता ना, पता ही नहीं चलता बेसिक्स क्या इतना पता है। जावेद, एचडीएफसी बैंक इज ए बी टू बी। अच्छा, आपको बी टू बी एग्जाम्पल इतना टाइम लग रहा है, बी टू सी एग्जाम्पल? इसीलिए ना पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करने के बाद उसको बोलना आना चाहिए। प्लीज बी ए पार्ट ऑफ दीज सेशंस। आपको ना मौका, ये मौका मिलता नहीं है ना इस तरह बातचीत करने का, इससे दिमाग में चीजें सेट नहीं हुई है अभी भी। आप लोग को भी पता है कि कॉलेज में पढ़ाई कैसे होती है। अरे गाइस, कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ बी टू बी एंड बी टू सी? 2-3 लोग लिख रहे हैं सिर्फ। तेजस, कैसे एग्जांपल्स दे रहे हो? मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, कंपनी के नाम बताओ ना बी टू बी एंड बी टू सी के। अरे भाई सिद्धार्थ, मेरे को डेफिनेशन नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, बी टू बी का एग्जाम्पल, बी टू सी का एग्जाम्पल। अमेजॉन बी टू बी है जावेद? आप अमेजॉन में जाते हो? जावेद, आप अमेजॉन में जाते हो? यस नो? जावेद आप जवाब दो, आप जाते हो कि नहीं? आप अमेजॉन में नहीं जाते, फ्लिपकार्ट में जाते हो? हाँ, तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट में ज्यादा फर्क है क्या? तो फ्लिपकार्ट अमेजॉन क्या हुआ? जो आपने ई कॉमर्स की बात बोली है, क्या हुआ वो? जावेद, जावेद, am I audible? Guys, don't you have example of B2B? अरे जावेद, एग्जांपल्स नहीं चाहिए यार, सेंटेंसेस नहीं चाहिए। यू डोंट हैव टू मीन। आप कहीं बैठे हो, किसी ने आपको बोला भैया बी टू सी का एग्जांपल दो, आप थोड़ी ना ऐसी बातें करोगे। Amazon, Flipkart is a B2C. Absolutely. Very basic. अभी गूगल करके जवाब तो मोबी क्लिक्स वगैरह आएगा ही ना दिमाग में। TCS, Infosys, these are all B2B. इतना क्यों वक्त लगता है आप लोगों को? TCS, Infosys, Microsoft, ये सब B2B है। आप जाते हो क्या TCS के पास किसी एज ए कस्टमर? नो ना? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब मुझे लॉजिकली एक बात बताओ जावेद, वो कर सकते हैं, बात की बात अलग है। इफ यू टॉक अबाउट Amazon वेब सर्विसेज, AWS, दैट्स आल्सो B2B, दैट इज B2B। बट Amazon ई कॉमर्स फंडामेंटली इट्स B2C। वो करने के लिए तो अगर आप गौर करो, आज Amazon इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, Amazon ऑब्वियसली कंपनी टू कंपनी भी डील करती होगी, बट फंडामेंटली Amazon ई कॉमर्स इज B2C। व्हेन यू टॉक अबाउट AWS, देन इट बिकम्स B2B। तेजस, ऑटोमोबाइल आप खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? आप ऑटोमोबाइल खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? देन इट बिकम्स B2C। हाँ तो फिर कम बैक टू द बेसिक्स। जावेद, आपको अपना पॉइंट समझ में आ गया? अब मुझे लॉजिकली एक बात का जवाब दो, बी टू बी कंपनी या बी टू सी कंपनी, किसका अकाउंट रिसीवेबल ज्यादा होगा बैलेंस शीट में? एक बी टू बी कंपनी का ज्यादा होगा कि बी टू सी कंपनी का ज्यादा होगा अकाउंट रिसीवेबल्स? गैस की बात नहीं है, लॉजिक लगाओ ना। व्हाट इज गैस? समझाया ना मैंने अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होता है। बी टू बी का होगा ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल क्या है? जो कस्टमर आपको फ्यूचर में देने वाला है पैसा। करेक्ट। अब जब आप अमेजोन में जाते हो खरीदने के लिए, फ्यूचर में देते हो क्या? वही देना शुरू करते हो ना।
B2B में when the company gets the trust, grows the trust, जो मैंने बोला, कंपनी give you time 30 days, 60 days, 90 days का क्रेडिट देती है पे करने के लिए. तो B2B कंपनीज का अकाउंट रिसीवेबल्स हमेशा ज्यादा होगा B2C से. समझ में आया? अब ये सवाल देखो, अब ये समझ में आया क्या? देखो, एक सवाल है. एक मिनट रुको. हाँ, ये वाला सवाल. देखो, 3 कंपनीज हैं. वॉलमार्ट है, मल्टीनेशनल रिटेल कॉर्पोरेशन है. स्टेपल्स है, ये एक ऑफिस सप्लाई की चेन है. ऑफिस सप्लाई मतलब स्टेशनरी वगैरह देती है. ठीक है, रिटेल चेन है. और इंटेल है, जो सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरर है. सोच समझ के बोलना चैट बॉक्स में. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स पे आपको इसको डालना है. मतलब वॉलमार्ट को, स्टेपल्स को और इंटेल को, इन तीनों में सबसे ज्यादा अकाउंट रिसीवेबल्स किसका होगा, फिर किसका होगा, फिर किसका होगा. लॉजिक लगाओ, लॉजिक, और ध्यान से. सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आया? कैन आई गेट अ यस ऑन द चैट बॉक्स? इसको रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस बोलते हैं. जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपको अप्लाई करना आना चाहिए. अब जरा दिमाग लगा के. मैंने आपको B2B B2C समझाया है. अब जरा दिमाग लगा के. टेक योर टाइम 2 minutes एंड देन आंसर. अरे जरा सोचना है, सोचना है. डोंट जंप इनटू इट. सोचो. 2 मिनट दिया है मैंने. इसी को बोलते हैं दिमाग लगाना. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एन एनालिस्ट डज. 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी आंसर डालो फटाफट.
Okay, I can see some answers. आप so I just अच्छा प्रशांत has given a lot of insights. नहीं तो आप लोगों में तो सबने आंसर दिया ही नहीं है. सिद्धार्थ कह रहा है रिपीट. 3 लोगों ने आंसर दिया है. समझ में नहीं आया सवाल क्या आप लोगों को? 3 कंपनीज के नाम दिए हैं और मैंने आपसे पूछा है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स पे डालो. सबसे ज्यादा किसका होगा, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद किसका होगा. कोई सेमी चिप्स का प्राइसेस का कुछ है ही नहीं प्रशांत इसमें. लॉजिक लगाओ. अभी मैं B2B B2C मैंने बताया ना आप लोगों को. फाइनेंस इज सो सिंपल, इट्स वेरी बेसिक्स. चलो आप लोग पहले ये लिखो मेरे को. इंटेल क्या है, लिखो इंटेल डैश. B2B या B2C, फटाफट लिखो. चलो जल्दी जल्दी. हाँ फटाफट सब लोग लिखो ना. इंटेल क्या है, सबका जवाब आना चाहिए चैट बॉक्स में. अब मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ तो जवाब दो मेरे को फटाफट. इंटेल डैश बोल के B2B लिखना है. क्यों B2B है? बिकॉज सेमीकंडक्टर चिप खरीदने के लिए हम नहीं जाते हैं. इंटेल के कस्टमर्स कौन है? इंटेल के कस्टमर्स कौन है? जवाब दो. इंटेल के कस्टमर्स कौन है? हाँ HP, डेल, लिनोवो, ये इंटेल के कस्टमर्स हैं. और आदत डालो ज्ञान नहीं देने की, हमेशा स्पेसिफिक एग्जांपल्स देने की. हमेशा ध्यान रखना प्रशांत, ऑलवेज स्पेसिफिक एग्जांपल्स. दैट्स हाउ योर अंडरस्टैंडिंग गेट्स बेटर. ठीक है चलो अगला. वॉलमार्ट क्या है? वॉलमार्ट डैश. वॉलमार्ट डैश. वॉलमार्ट इज B2C. बिल्कुल वॉलमार्ट इज अ B2C. इट्स अ रिटेल कॉर्पोरेशन. हम जाते हैं वॉलमार्ट पे चीजें खरीदते हैं. ठीक है ओके. अभी हमारे पास है स्टेपल्स. स्टेपल्स क्या है? स्टेपल्स एक ऑफिस सप्लाई का चेन है. ऑफिस सप्लाई का चेन मतलब जैसे अगर आप पूना पूना को जानते हो तो पूना में है वीनस ट्रेडर्स, राइट? उसको कंपेयर कर सकते हैं वीनस ट्रेडर्स को. तो वहां जाके आप खरीदते हो स्टेशनरी, या कंपनी का HR आके भी वहां बोल सकता है कि हमको ये सब दे दो, राइट? बिकॉज इट्स अ चेन. तो वो B2B और B2C दोनों हो सकता है फंडामेंटली, राइट? यस नो? B2B एंड B2C दोनों हो सकता है. ऑफिस सप्लाई का चेन है ना, तो हम जाके भी खरीद सकते हैं और कंपनी जाके भी बोल सकता है ना कि हमको दे दो, इतना चाहिए. हाँ. अब मुझे बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा अकाउंट रिसीवेबल्स किसका होगा बैलेंस शीट में? सबसे ज्यादा किसका होगा? इंटेल का. उसके बाद स्टेपल्स का, क्योंकि उसमें B2B कंपोनेंट है. और उसके बाद वॉलमार्ट. तो हो गया इंटेल, स्टेपल्स, वॉलमार्ट. दैट्स इट. समझ में आया? ये गौर करो, आपने बैलेंस शीट देखा नहीं है, पर आपको ऑलरेडी पता है कि अकाउंट रिसीवेबल्स किस तरह की कंपनीज में, अगर अकाउंट रिसीवेबल्स किसी कंपनी का ज्यादा है रिलेटिव टू सेल्स. यहां देखो रिलेटिव टू सेल्स. रिलेटिव टू सेल्स का मतलब है धीरे धीरे आगे समझ में आएगा आपको जब मैं रेशियो एनालिसिस की तरफ आऊंगा. तो आपको समझ में आएगा ओ इसका अकाउंट रिसीवेबल ज्यादा है, मतलब इसके क्लाइंट्स B2B में ज्यादा है. समझ में आया? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है आगे बढ़ते हैं. ओके लेट्स गो टू आवर तीसरे पॉइंट पे आते हैं. इन्वेंट्री. तो इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्रीज आर द गुड्स.
that a company intends to sell, right? अगर गौर किया जाए, इन्वेंट्रीज इंक्लूड क्या क्या? रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स जो अभी भी कन्वेयर बेल्ट पे हैं, मतलब प्रोडक्ट दैट आर बीइंग फिनिश्ड, फिनिश हुए नहीं है, एंड फाइनल गुड्स, राइट? तो अगर मैं हैगेन-डाज़ जो हमने एग्जांपल दिया है उसके इन्वेंटरी की बात करूं तो रॉ मटेरियल, चॉकलेट्स बोल लो, बीन्स बोल लो, कि तो आइसक्रीम बनता है, फिर जो प्रोडक्ट अभी तक बना नहीं, आइसक्रीम पूरी तरह बना नहीं है, वो भी इन्वेंटरी है, और जब आइसक्रीम बन के बाहर आ गया तो वो इन्वेंटरी है ही है। सो इन्वेंटरी, गौर करना, तीन चीजों को इन्वेंटरी बोला जाता है: रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट दैट आर बीइंग फिनिश्ड एंड द फाइनल गुड्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को एक काम दे रहा हूं मैं, EGMNN, ये कंपनी देखो, EGM&N, और इन्वेंटरीज का रो देखो, क्या दिख रहा है? EGMNN, इन्वेंटरी का रो देखो, क्या दिख रहा है? सही देखा, मतलब so company has no goods to sell. How is that possible? तो क्या इन्फ्रेंस बाहर निकल के आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ ना, कंपनी हैज, नो प्रशांत, एक्स्ट्रा नहीं सोचने का, बेसिक्स बेसिक्स प्रशांत, बेसिक्स खिले हुए हैं। ट्रेडिंग वेडिंग, ट्रेडिंग भी तो गुड्स का ही होगा ना यार, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे जवाब दो, आप लोग सोच के देखो, सोचो सोचो। आपने देखा इन्वेंट्री जीरो है, मतलब दे हैव नो गुड्स टू सेल, क्योंकि इन्वेंट्रीज का बेसिक डेफिनेशन क्या है? रॉ मटेरियल्स, जैसे आपने लिखा सेमी फिनिश्ड, द प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग फिनिश्ड एंड फाइनल गुड्स, उनके पास है ही नहीं, मतलब क्या है ये? इमीडिएट जवाब क्या आ रहा है? एब्सोल्युटली जावेद, मेक सेंस, दे हैव सर्विसेज, एब्सोल्युटली। सो मैं यहाँ पे ना एक टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, सो सुनो सुनो, लिसन, ठीक है, सर्विस, इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, तभी कोई गुड्स नहीं है, इन्वेंट्री जीरो है, ठीक है। अब मैं कुछ बातें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं थ्रू दिस थॉट। देखो, जब भी कोई कंपनी, देखो आप लोग ना बार बार ये चीज भूलना मत, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मेरे को एनालिस्ट बनना है, तो मेरे को कंपनी और सेक्टर एनालिसिस करनी आनी चाहिए, फिर चाहे वो मैं अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा हूं, या कंपनी में कर रहा हूं, या ये जो ब्यूटी है फाइनेंशियल वर्ल्ड, इसको समझने के लिए कर रहा हूं, चाहे कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन मेरे को सेक्टर एनालिसिस करना, कंपनी की एनालिसिस करना आना चाहिए। तो बहुत सारी स्टोरीज बाहर निकल के आती है। नंबर्स क्या है? जब तक नंबर्स को स्टोरीज में कन्वर्ट ना करो, कोई मजा नहीं है, और वही तो हो रहा है। हम एक एक नंबर को देख के उसको उसके पीछे की स्टोरी समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह पे देखा इतना ज्यादा कैश, अच्छा इतना ज्यादा कैश कंपनी क्या करेगी? एक जगह पे देखा अरे इन्वेंट्री जीरो है, इन्वेंट्री अगर जीरो है तो पता नहीं कंपनी क्या बेच रही है। तो ये स्टोरीज हैं। तो जब किसी कंपनी को आप एनालाइज करो, सबसे पहले चेक करो B2B है या B2C है। ये बेसिक है, बेसिक रूल है। कंपनी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट कंपनी है या सर्विस कंपनी है? अब फॉर एग्जांपल टीसीएस, इन्फोसिस, इट्स अ सर्विस कंपनी, B2B सर्विस कंपनी। टीसीएस का अपना एक प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं ईऑन, AEON, ईऑन। वो प्रोडक्ट है टीसीएस का। इन्फोसिस का भी खुद का अपना एक प्रोडक्ट है, फिनाकल। इट्स अ सर्विस कंपनी जो सर्विस देती है, कंसल्टिंग सर्विस देती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस देती है। कोई एडवर्टाइजिंग फर्म है, सर्विस कंपनी। कोई लॉ फर्म है, सर्विस कंपनी। डॉक्टर, प्रोफेशनल सर्विस, सर्विस कंपनी। एक टर्म मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करके देता हूं, चैट बॉक्स में लिख रहा हूं। केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का नाम सुना होगा, दुनिया की नंबर 1 स्कूल है ब्रांडिंग और मार्केटिंग को लेकर। वहां के एक प्रोफेसर ने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया है। मतलब हमारे जो फिलिप कॉटलर 1960 वाली किताब आज आज भी पढ़ते होंगे आपको, जो नहीं पढ़नी चाहिए, वो इसी स्कूल के एमेरिटस प्रोफेसर रहे हैं, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के। तो मैंने जो टर्म इंट्रोड्यूस किया है वो है प्रोडाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है। प्रोडाइस 2 वर्ड से बना है, प्रोडक्ट और सर्विस। अब इन डिजिटल इकोनॉमी every product is serviced and every service is productized। मतलब अगर आपने रिलायंस में जाकर वॉशिंग मशीन खरीदा, सो यू बॉट ए प्रोडक्ट, लेकिन यू ऑल्सो कीप इन माइंड उस कंपनी का आप खरीदोगे जिसका आफ्टर सेल सर्विस अच्छा हो, दैट्स अ सर्विस। सो एवरी every product is serviced and every service is productized। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने एजुकेशन के लिए MBA कॉलेज सिलेक्ट किया, एजुकेशन इज सर्विस, लेकिन सिलेक्ट करते वक्त आपके सामने 4-5 कॉलेजेस आ गए, बेस्ड ऑन काउंसलिंग, इन्फ्लुएंस, बेस्ड ऑन काउंसलिंग हो गई, इन्फ्लुएंसर्स आ गए, जो भी हो, जिसके बेसिस पे आपने डिसीजन बनाया। सो सर वो है सर्विस, लेकिन आपको एज अ प्रोडक्ट आपके सामने पेश किया गया। स्किल एज, वी आर इनटू सर्विस, स्किल डेवलपमेंट इज अ सर्विस। इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम हियर, व्हिच मींस there can be 2-3 options on the basis of which you said, okay, let me spend my time over here. Whatever reasons, you eventually figure it out. Service which is productized, ये word याद रखना। So कहने का मतलब मेरा ये है, जब आप कोई कंपनी एनालाइज करते हो, क्या बोला मैंने, प्लीज चेक ये B2B में है, B2C में है, दोनों में है। जैसे आज एक नया टर्म है D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, बोट, जो आप देखते रहते हो, अमन को देखते हो शार्क टैंक में जो आता है, दैट्स अ D2C ब्रांड। बोट, नाइका खुद ही बनाते हैं और कंज्यूमर के पास डायरेक्टली पहुंचते हैं, दैट्स D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड। सो वेदर इट इज अ B2B, B2C या D2C, या प्रोडक्ट कंपनी है या सर्विस कंपनी है। और सर्विस कंपनी है तो डेफिनेटली सर्विस कंपनी अपने सर्विस को एज अ कस्टमर आप उसको प्रोडक्टाइज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल रेटिंग्स क्यों जरूरी हो गए हैं, क्योंकि रेटिंग्स मिलने पे सर्विस, जब आप होटल में जाते हो, ट्रिप एडवाइजर आप देखते हो कहाँ पे, जोमेटो में देखते हो, आपके सामने वो सर्विस प्रोडक्टाइज्ड हो गया। और अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, बड़ा जरूरी हो गया है। समझ में आया आपको ये टर्म्स, और ये समझ में आया कि कंपनी की जब एनालिसिस शुरू होती है तो किन चीजों का पहले ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो बहुत ही बेसिक्स होते हैं। कैन आई गेट अ क्विक यस ऑन द चैट बॉक्स प्लीज? समझ में आ रहा है? इज इट गेटिंग इंटरेस्टिंग?
ठीक है, ओके। सो अब आते हैं हम इस पे, अदर करंट, ये आखिरी पॉइंट होगा आज का। So, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे इसको पढ़ने वाले हैं। सो अटेंशन चाहिए होगा, नोट्स बनाओगे आप लोग। आई एम ओके अगर ग्रुप में आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप कॉमन टाइम एक दे दोगे, बिकॉज मुझे नहीं लगता हमें संडे तक वेट करना चाहिए, हमें वीकडे में भी कंटिन्यू करना चाहिए आपकी ऑफिस वगैरह होने के बाद, ऐसा मुझे लगता है। बट वी कैन डिसाइड दैट, बिकॉज वो अभी मोमेंटम है ना, तो मजा आएगा। से फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे कर लिया, फ्राइडे कर लिया, फिर सैटरडे संडे कर लिया, तो मोमेंटम थोड़ा बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो, ये अदर करंट एसेट्स क्या है? ठीक है, अब अदर करंट एसेट्स it can be many things. For example, आपने कैश देख लिया, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स देख लिया, इन्वेंट्रीज देख लिया आपने, इन्वेंट्रीज अगर आप गौर करो, ऑब्वियसली बात है, किस डिग्री में आप उनको कैश में कन्वर्ट करोगे, कितनी जल्दी, उसी ऑर्डर में वो लिखे गए हैं। पहले कैश करोगे, उसके बाद ही अकाउंट रिसीवेबल्स होंगे, उसके बाद ही आप इन्वेंट्रीज को कैश में कन्वर्ट कर पाओगे, राइट? ओके, let's go to our main ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है अदर करंट एसेट्स, ये आपके वो चीजें हैं जो इन्वेंट्रीज के बाद, और देखो अगर आप देखो इनके वैल्यू ज्यादा नहीं है आउट ऑफ 100। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, थोड़ा वक्त लगेगा जिनको कैश में कन्वर्ट करने के लिए। आप लोन्स ले लो, लोन एंड एडवांसेस ले लो। तो ऐसे कुछ टर्म्स होंगे जो अदर एसेट्स में आते हैं, अदर करंट एसेट्स में, मतलब एक साल के अंदर उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस इस टर्म का नहीं है। ये वाला अदर एसेट्स और ये अलग है, क्योंकि अदर करंट एसेट्स के बाद ये शुरू हो जाता है नॉन करंट एसेट्स, इफ यू रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग, राइट? इफ यू सी दिस अदर करंट एसेट्स, ये करंट एसेट्स हैं और ये अदर एसेट्स हैं जो कि बहुत अलग है। ठीक है, बिकॉज इट इज द डिग्री बाय विच दे आर कन्वर्टेड इनटू कैश, राइट? सो अदर करंट एसेट्स में आप बोल सकते हो लोन, लोन मतलब नॉट द लोन्स, क्योंकि लोन्स तो आपके लायबिलिटीज में आएगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ जो डेट वगैरह होते हैं, लोन एसेट्स, लोन लेके जो आपने एसेट बनाया है, राइट, करंट एसेट के हिसाब से, बैंक ओवरड्राफ्ट पड़ा हुआ है आपके पास, राइट? तो वो अदर करंट एसेट्स में आएगा। तो ये हो गया आपका एक बेसिक बैलेंस शीट का ये 4 पॉइंट्स: कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज
एंड अदर करंट एसेट्स, बेसिक्स। इसके बारे में आपको समझ में आया, थोड़ा ये पढ़ते हुए आपको सेक्टर एनालिसिस या कंपनी एनालिसिस कैसे करते हैं वो दिमाग में आया, एंड कुछ कुछ बातें जो मैंने बताई। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स की शुरुआत करते हैं, एंड देन वी टेक अ स्टॉप फॉर द डे टुडे। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको हम बोलते हैं पीपीई, ये टेंजिबल होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जिसको ऑब्वियसली कंपनी यूज करता है अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, राइट। एंड दिस कैन इंक्लूड हेडक्वार्टर्स, फैक्ट्रीज, मशीन्स, स्टोर्स, राइट। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात बोलूं, सो उनके पास उनका पीपीई बहुत ज्यादा होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। या अगर मैं एक रिटेल आउटलेट की बात बोलूं, तो भी उनके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ज्यादा होंगे, राइट। सो अगर आप गौर करो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये देखो, मोर देन 50% आई, एल एंड एम में, मोर देन 50% प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका एसेट है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट लाने के लिए आई नीड अनदर हाफ एन आवर, इसलिए हम इसको अगली बार लेंगे। ये अदर एसेट्स क्या है जो भी नॉन करेंट एसेट में लिखा गया है? व्हाट आर दिस अदर एसेट्स? मैं आपको सिर्फ एक बात बोल के छोड़ता हूं। 2016 में ना माइक्रोसॉफ्ट ने 26.2 बिलियन स्पेंड किया था एक कंपनी को एक्वायर करने के लिए, और उस कंपनी का नाम है, एनीबडी? दो 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने 26.2 बिलियन खर्च किया था एक कंपनी को खरीदने के लिए 2016 में। वो कंपनी है लिंक्डइन। उस वक्त 26.2 बिलियन, उस वक्त लिंक्डइन के एसेट्स में जो वैल्यू थी वो थी 7 बिलियन। तो ये जो 19.2 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट ने एक्स्ट्रा पे किया ना, वो माइक्रोसॉफ्ट के बैलेंस शीट में अदर एसेट्स में आता है। ऐसा क्यों और ऐसा कैसे हुआ, ये हम अगली बार देखेंगे। जावेद, प्रीपेड एक्सपेंसेस मैं बताऊंगा आपको अगली बार। एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस पता होना चाहिए, इसलिए मैंने वो वर्ड यूज नहीं किया है अभी। एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर दो अलग अलग है। इंग्लिश में एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस सेम होता है, द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस अलग होता है। ऑल राइट, सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट मास्टर क्लास ऑफ आरंभ। फाइनेंशियल एनालिसिस की शुरुआत हुई है। जैसे मैंने कहा, uh, इस सेशन के बाद फीडबैक फॉर्म आएगा, तो फीडबैक फॉर्म भरना, इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि वीकडे में भी कर सकते हैं, आई एम हैप्पी फॉर दैट। नहीं तो वीकेंड में ही। आई होप यू ऑल एंजॉयड। मास्टर क्लासेस ऐसे चलते रहेंगे, ये जस्ट शुरुआत है। अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स है फाइनेंस के, जो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं आपको एक स्टेटमेंट देके जा रहा हूं। इस मास्टर क्लास के बाद दूसरा एक मास्टर क्लास होगा, जिसमें मैं बताऊंगा फाइनेंस इज इक्विवेलेंट टू माइक्रोबायोलॉजी, और मैं बताऊंगा कि फाइनेंस माइक्रोबायोलॉजी के साथ कैसे रिलेटेड है। तो ये पार्ट 1 है। इस मास्टर क्लास को खत्म करेंगे पार्ट 2 में, एंड फिर हम उस कॉन्सेप्ट पे आएंगे जहां मैंने आपको कहा रिस्क एंड रिवॉर्ड, बिकॉज फाइनेंस हमेशा उसी पे काम करता है। फाइनेंस इज फ्यूचर, दैट्स व्हाट इट इज।
राइट? थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। मजा आया बात करके आप लोगों से, और भी मजा आएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको और आगे लेके जाएंगे। आई होप यू ऑल एंजॉयड। कैन आई गेट सम रिस्पॉन्सेस प्लीज? चलिए, थैंक यू सो मच। थोड़ा आई वाज डाउन विद फीवर एंड एवरीथिंग, बट आई होप माय वॉइस एंड एवरीथिंग वाज ओके। बट मजा आएगा आप लोगों से बात करने में और इंटरेक्शन करने में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स सिद्धार्थ, थैंक यू, थैंक यू। Stay in touch everyone so that we can keep learning. We can keep learning. ये बस starting है। Thank you. Thank you all. Thank you. Yes, yes, you will get the recording, Rishikesh. Absolutely. Absolutely. Thank you, Indranil, for arranging the session. Let's meet as soon as possible and take it ahead, the part 2 of this masterclass. Thank you, sir. Thank you. Thank you for this wonderful session. Student feedback form chat box में share किया गया है. Fill the feedback form. It's very important. और जैसे मैंने कहा था कि मास्टर क्लास ये तो बस शुरुआत है स्टूडेंट्स, आगे बहुत सारे मास्टर क्लास होते रहेंगे। और आप सभी ऑल इंडिया ग्रुप के पार्टिसिपेंट हो, ऑल इंडिया ग्रुप के पार्ट हो। उस ग्रुप पे इन बिटवीन, इस वीक के बीच में अगर आपको, क्योंकि संडे काफी दूर है, आपके दिमाग से, आपके जहन से, आपके मेमोरी से बहुत सारी बातें चला जाएगा। अगर इन बिटवीन ग्रुप में आप ये पुट कर देना कि वीक में कब आपको चाहिए, मैं मैसेज करूंगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे ग्रुप पे वो टाइम स्लॉट दिया जाएगा जिस वक्त आपको बताना है कि मंडे टू सैटरडे के बीच में कब आप चाहते हो क्लास, टाइमिंग एंड ऑल। एक सर्टेन पीरियड हम देंगे, क्योंकि ग्रुप में आपको मैसेज करना अलाउ नहीं है, बट एक टाइम हम देंगे, उस वक्त आप पुट करना। फिल द फीडबैक फॉर्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीरीज में अगर कंटिन्यू बने रहना है, देन फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अटेंडेंस ऑल्सो। आज आपने अटेंड किया है, नेक्स्ट सेशन भी आपको अटेंड करना है, एंड ऑब्वियसली आपके जो भी फ्रेंड्स है, कलीग है, उन्हें भी आप सजेस्ट कर सकते हो। So thank you so much. Thank you, Rohit sir. Thank you all the participants. Thanks for watching. Do like, share and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to click the bell icon. #Skill से करियर तक हम आपके साथ हैं।